Hello students, good morning. I hope you all are well and safe at your home. So now let's start today's session. This session for 3rd class, subject science, chapter 5. Chapter name is birds. Lecture number 4. Topic will be assignment 1. Today we will discuss about assignment. Now we are going to start the assignment, so you have to listen carefully and your eyes should be on the screen. Now here, as you can see here, the first question is match the column. It's column A and here column B. In column A, first word is hen, H-E-N, hen. So hen, what type of bird is? Yes, you can see here. It's praying bird, wedding bird, swimming bird, perching bird and fifth is scratching bird. तो ये hen के बारे में याद करो कि ये किस प्रकार की बर्ड आपको पढ़ाई थी इन प्रीवियस लेक्चर. ये जो है hen थी स्क्रैचिंग बर्ड्स की, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन हर फूड. ये इस जो इसकी बीक है वो डिपेंड करती है इसके फूड पर. तो इसका फूड जो कहाँ होता है? इसका फूड होता है जमीन के अंदर, जिसको ये ऐसे खोदती है और फिर उसे प्राप्त करती है. तो स्क्रैचिंग बर्ड कौन सी है? hen. कौन सी स्क्रैचिंग बर्ड है? hen. So you have to draw a line here and match it. Scratching bird. But you don't have assignment, so you have to focus here only. Now second is duck. Duck. और duck कौन सी हमारी बर्ड है? यस, ये कहाँ रहती है? वाटर. तो कहाँ वाटर कहाँ पे होगा? स्विमिंग. सो मैच इट विथ थर्ड नंबर. नाउ थर्ड इज क्रेन. क्रेन विच टाइप ऑफ बर्ड? क्रेन वेडिंग बर्ड. सो मैच इट second number. Now fourth number is eagle. Eagle, you have in column B, two are left, praying bird and perching bird. So eagle कैसी बर्ड है? शिकार करती है ना? शिकारी को क्या बोला था? प्रे. प्रे मीन्स शिकार. So you have to match with praying bird. Now fifth is crow. Crow is perching bird. और crow के friends कौन कौन थे? Have you remember? crow के कौन कौन से friends थे? Yes, wonderful. Yes, friends are crow, sparrow. So we have to match perching birds. Crow, perching birds, hen, scratching bird, duck, swimming bird, crane, wedding bird, eagle, praying bird. Now I am going to second question. Second question is your fill in the blanks. Fill in the blanks. In first number is the dash feet help goose to swim in water. In water. Now you can see. The feet help. जो अब ये तो पता लग गया, ये गूज के बारे में पता लग रहा है. तो गूज के जो कैसे होते हैं उनके फीट, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. कहाँ पर? पानी में. सो हियर इज आंसर्स. एग्स, नो. पर्चिंग बर्ड्स,
I have already told you about perching birds, so it's not. And the third is webbed. Web means jala. So it's the right answer. So you have to focus here. I am writing here. The spelling is, you can speak WEBBED. Webbed. The spelling is WEBBED. Webbed. And the second is crow and sparrow are dash birds. कैसे बर्ड हैं ये? किसके फ्रेंड्स थे? क्रो किसका फ्रेंड था? स्पैरो का ना, अभी बताया था. सो हियर क्रो एंड स्पैरो आर पर्चिंग बर्ड्स. कैसे बर्ड्स हैं? पर्चिंग. सो यू हैव टू राइट हियर, स्पीक विद मी, PERCHING. Perching birds. Now come to third number. Dash feathers help the birds to fly. ऐसे feathers जो fly में birds की help करते हैं. Feathers help the bird to fly. कौन से होते हैं वो? Which type of birds? Which type of feathers? कौन से feathers थे? I have told you 3 type of feathers: down feathers, body feathers, and third one is body feathers, down feathers, flight feathers. Third one is flight feathers. Yes, it's your answer. So you have to speak with me. FLIGHT. Flight feathers help the bird to fly. Now next is birds build nests to lay. जो birds हैं वो घोंसले को क्यों बनाती हैं? Because to lay eggs. वो अंडे देने के लिए, अपने बेबी को बर्थ करने के लिए, जन्म देने के लिए. So you have to write here eggs. I know you have already know about spelling of eggs. मुझे पता है आपको eggs की spelling आती है, so इसीलिए मैंने आपको बुलवाया नहीं. Now next come to third question. Third question is tick the correct answer. We can call MCQ questions also. ठीक है, हम MCQ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको. Now next is in tick the correct answer में first है sparrow and pigeon are flesh eaters, nut eaters, insect eater, grain eaters. कौन से eaters हैं ये? Which types of eater they are? Sparrow and pigeon. क्या खाते हैं ये? Flesh? No. Insects? No. Nut? No. Grain eaters हैं. So you have to tick here. You have to not, but you have to watch carefully where I have ticked. Now the second is these birds of prey have strong, sharp and hooked beaks. These birds, वो birds की बताओ जिसकी strong और sharp और hooked, थ्री टाइप में एक चोंच में होती हैं. उनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, शार्प भी होती है और हुक्ड मुड़ी हुई भी होती है. सो द आंसर्स आर हियर. फर्स्ट ए ईगल्स, वल्चुअर, स्पैरो. देन बी ईगल, वल्चुअर एंड पिजन्स. सी ईगल्स, वल्चुअर्स, काइट एंड ईगल, वल्चुअर्स एंड डक. हैव यू सीन कि सब में ईगल्स और वल्चुअर लिखा हुआ है, बट द थर्ड बर्ड इज डिफरेंट. थर्ड बर्ड जो है वो डिफरेंट है. इन फर्स्ट ए स्पैरो, इन बी पिजन, इन सी काइट्स, इन डी डक्स.
तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है. यू हैव थिंक अबाउट. यस, द ग्रेट आंसर इज योर द ईगल, vulture, kites. C. Now next question 3. Which is known as a bird of prey? तो हमने प्रेइंग बर्ड्स के बारे में अभी इसी असाइनमेंट में ही पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था. सो थिंक अबाउट hen, vulture, parakeet, sparrow. Which one is the right answer? Vulture. Next, which of the following is a flightless bird? Flightless means no flight. No flight bird. No flight means कि जो उड़ नहीं सकता. Flightless means जो उड़ नहीं सकता. So here I have written A number ostrich, C sparrow, B eagle, D goose. So option is your ostrich, sparrow, eagle, goose. Eagle, yes, fly. Goose, yes, fly. Sparrow, we all know. And the answer यही बची है हमारा ostrich. The answer is ostrich. Ostrich is can't fly, cannot fly. Now come to the next question. 5th number. Which bird has webbed feet? कौन सी bird ऐसी है जिसके webbed feet होते हैं? So options is your A duck, B parakeet, C peacock and D emu. So now remember the all birds. Who is the webbed feet? किसके webbed feet थे? Who has webbed feet? The right answer is duck. Duck has webbed feet. 6th number. Focus on your screen. 6th number is feet with 2 toes upward and 2 toes downward help bird to. जो उनके फीट होते हैं 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे जो क्लास हैं वो हमें बर्ड को किस तरह की हेल्प देते हैं? ऑप्शन ए होल्ड ऑन टू अ ब्रांच, यानी कि ब्रांच को ऐसे पकड़ने में. नाउ सेकंड बी डिग द ग्राउंड, ऐसे 2 से वो खोद भी सकते हैं. नाउ सी क्लाइंब ट्री, उन्हें ऐसे पकड़ के चढ़ भी सकते हैं. नाउ डी पुश टू वाटर, यानी पानी को धक्का भी दे सकते हैं. नाउ रिमेंबर the bird who has upward and downwards toes. Yes, C climb trees. किस काम आते हैं? क्लाइंब, चढ़ने के. होल्ड तो कर सकते हैं बट 2 जो है वो भी ऐसे होल्ड एक की जरूरत है, 2 की नहीं है. बट क्लाइंबिंग में 2 डाउन होते हैं, 2 अप होते हैं. नाउ 7th, अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद. बॉडी जो है बर्ड की वो किससे कवर रहती है? कौन से फीदर से? वी आर टॉकिंग अबाउट फीदर्स. नाउ ऑप्शन इज डाउन फीदर्स, बी फ्लाइट फीदर्स, सी बॉडी फीदर्स एंड डी ऑप्शन ऑल अबाउ फीदर्स. यानी कि ऑल अबाउ फीदर्स की जो तीनों हैं वो तीनों ही हमने आंसर कर दिए. ठीक है. और ए में है डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स कैसे? फ्लाइट फीदर नो फ्लाइट, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता. ऑल अबाउ सारे फीदर्स, ये सारे पंख एक पक्षी के नहीं हो सकते. नाउ द
यू हैव टू चूज बोथ ऑफ देम, इसमें से हमें सोचना है। डाउन फीदर्स कैसे थी, एंड बॉडी फीदर्स। डाउन फीदर्स जो थे हमारे, वार्म द बर्ड, वो गर्माहट देते थे। बॉडी फीदर्स जो हैं वो कवर्ड करते हैं। तो सो राइट आंसर इज बॉडी फीदर। नाउ 8th, द बर्ड यूजेस इट्स बीक like a needle to sew leaves with materials like thread and wool। मीन्स कि जो बर्ड है वो अपनी बीक का इस्तेमाल करके एक सुई, बर्ड जो बीक है वो उसको सुई समझ के और पत्तों को कुछ मटेरियल उठा के जो वो चुक्के लेके आते हैं उनसे अपना नेस्ट तैयार करती है। तो इस तरह के जो बर्ड्स हैं वो कौन से हैं? आई एम आस्किंग अबाउट ऑन दैट बर्ड जो सुई की तरह अपना नेस्ट बनाते हैं। सो ऑप्शन हियर on your screen, the A1 is the tailor bird, B the weaver's bird, C woodpecker, इसकी भी चोंच होती है अच्छी तीखी सी, D the penguins, मोटा सा होता है, काम कर सकता है नहीं। सो थिंक अबाउट ऑल दीज बर्ड्स एंड हु इज जो अपनी बीक को नीडल की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे सुई का काम कौन करता है? टेलर करते हैं। सो द टेलर बर्ड, तो राइट इजी था ना। सो राइट आंसर इज टेलर बर्ड। 9th, हु इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट लिविंग बर्ड? ऐसा बर्ड जो बहुत बड़ा और हैवी होगा। ठीक है, कौन होगा आप बताओ मुझे। थिंक अबाउट, सोचो जरा। यस, ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन, ए स्पैरो, स्पैरो है? नो, छोटी सी होती है। ईगल, द सी इज क्रो एंड द डी इज ऑस्ट्रिच। So heaviest or largest bird, they cannot fly or fly. Sparrow, yes, it's fly bird. And crow, yes, it can. Eagle, yes, ये भी fly कर सकती है। But ostrich can't fly, cannot fly. So the right answer is ostrich। ये क्यों fly नहीं कर सकती हैं? Because of largest और heaviest, वो आकार में बड़ी और हैवी है। Now 10th number is A कारपेंटर्स टूल। इनमें से मैंने बी जो ब्रिक होती है वो आपके लिखी हुई है, हार्ड, चिजल, कर्व्ड, स्टिकी। तो इन ऐसी बीक्स में से एक ऐसा भी टूल है जो कारपेंटर इस्तेमाल करता है। सो हार्ड मजबूत, कर्व्ड मुड़ा हुआ, स्टिकी चिपचिपा, एंड द चिजल छेनी। द राइट आंसर इज चिजल, छेनी कारपेंटर यूज करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, नेम द बर्ड दैट। एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बर्ड के बारे में सोचना है, वो कौन सा, ये सेंटेंस किस बर्ड के बारे में लिखा हुआ है। ओके, नाउ इट्स फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय अ स्किन। उनके फ्रंट टोज जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं चमड़ी से। yes, the right answer is duck. So I am writing here
DUCK, duck. Now next is collects pebbles. Collect इकट्ठे, pebbles छोटे छोटे पत्थर, and stones to make a nest. कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट पेबल से, स्टोन से बनाता है? हैव यू नो ऑल अबाउट बर्ड्स? आपको सब पता है बर्ड्स के बारे में? तो थिंक अबाउट कि जो बर्ड्स हमने पढ़े हैं, जो हमारे आसपास देखने को बर्ड्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ ड्राई ग्रास एंड कॉटन, वूल, these type materials. But the penguins cannot find these types of things. वो उसको नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ज़्यादातर, तो उसका फिर जो अपना नेस्ट है, घर है, वो किससे बनाता है? पेबल से, स्टोन से. सो राइट आंसर इज penguins. So I am writing here and you have to speak with me. P-E-N, yes, P-E-N, pen, and G-U-I-N-S, penguins. Penguins जब बोलते हैं तो penguins नहीं करते हैं. You have to speak like penguins. Now I am going to next question. Next is the champion of माइग्रेशन. एंड माइग्रेशन की जो चैंपियन है वो कौन सी बर्ड है? थिंक अबाउट, सोचो. हैव यू रिमेंबर्ड? यस, आर्टिक टर्न. हमने ऐसे बर्ड पढ़ा था ना जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से साउथ पोल इतनी लंबी जर्नी तय करते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. जो ये लॉन्ग जर्नी होती है उसको माइग्रेशन कहते हैं. और ये माइग्रेशन का चैंपियन मीन्स जो इतनी लंबी जर्नी फास्टली करता है सबसे, वो कौन सा बर्ड है आपका? आर्टिक टर्न. एंड यू हैव टू स्पीक विद मी. ARCTIC. It's Arctic and TERN, tern. Arctic tern. Which bird is Arctic tern? The champion of migration, Arctic tern. Yes, speak loudly. Now next is use dry strips of palm leaves. जो palm leaves को इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? Yes, weaver's bird. W, you have to speak with me. WEAVER. Weaver. Speak with me. Weaver. Weaver birds. BIRDS. The next is the only bird which locates its prey by smell. Means जो खुशबू से अपने शिकार का पता लगा लेती है, वो बर्ड का नाम बताओ. नाम सोचो आप. Yes, I have told in previous lecture. Remember? Have you remembered? The answer is kiwi. 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 kiwi bird है जो अपने स्मेल से पता लगा लेती है अपने शिकार का, अपने भोजन का. ओके, नाउ वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर. सो ओपन योर नोटबुक. हैव यू रिटन? यस, these are your questions and answers. Now question is, how do beaks and claws help the birds? Beaks और claws कैसे help करते हैं bird की? Now speak with me. Birds use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. Now again speak with me. Birds use their beaks
and class to catch, hold and eat their food. Eat their food. Yes. Now again speak with me. Birds use their beaks. Yes. And claws to catch, hold and eat their food. Now, second question. What are talons? Talons क्या हैं? Yes, speak with me. Sharp and curved claws called talons. Again, speak loudly. Sharp and curved claws called talons. Again, sharp and curved claws called talons. Sharp and curved claws called talons. Now next question is, why do birds build their nest? वो अपना जो है नेस्ट क्यों बनाते हैं? Yes, answer is birds build their nests to lay eggs and keep their babies safe from bad weather and enemies. Now again speak with me, repeat. Birds build their nests to lay eggs and keep their babies safe from bad weathers and enemies. Now, one time more. Birds build their nests to lay eggs and keep their babies safe from bad weather and enemies. Now, last question is, what is migration? Migration क्या है? Migration is the mass movement. Yes, speak with me. Migration is the mass movement of birds. You have to learn only birds. Okay, we had discussed about birds, ना? But animals की भी और birds की same यही migration की वो है. ठीक है, माइग्रेशन का मतलब ही एनिमल्स और बर्ड्स की जर्नी से है. अगर आप एनिमल्स नहीं लिखेंगे तो कोई ऐसा मार्क्स आपके नहीं कटेंगे और आंसर आपका गलत नहीं हो जाएगा. सो यू हैव टू लर्न बर्ड्स ओनली. सो माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज. Answer is, migration is the mass movement of birds in response to climate change. So these are your question answer. You have to learn all these questions answer and read one time your lesson. एक बार lesson को भी पढ़ना है और अपना ये क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना. होमवर्क, लर्न एंड रीराइट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5. कौन सा आपका? बर्ड्स. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और दोबारा लिखने. एक बार अपने नोटबुक पे लिखे हुए हैं ना,
तो कोई बात नहीं, आपको एक अब की बार याद करके लिखने हैं. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट, फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. एंड वन मोर थिंग, एक बार लेसन को भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है. सो टेस्ट में भी आपको अपने आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है और सही आंसर्स देने हैं. यस, इट्स योर बुक, ये आपकी बुक है. इसमें क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे हैं. पेज नंबर 41. व्हाट काइंड्स ऑफ फीदर डू द बर्ड्स हैव? What are the two movement of wings of birds in flight? In third, how do beaks and claws help the birds? Next question है, what are talons? And next, why do birds build their nest? And sixth is, what is migration? ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको सारे लर्न करने हैं और एक बार टाइम मिले तो चैप्टर भी पढ़ लेना. और इनमें से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे. व्हाट इज माइग्रेशन, जो लिखने का काम है. लर्न आपको सारे करने हैं बट लिखने के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके सेकंड मीन्स सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन. यू हैव टू राइट आंसर इन ऑल दीज क्वेश्चंस. आप इन सब के क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे. बट यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन. एंड वन मोर थिंग, कोई पेन यूज नहीं करेगा. यू हैव टू राइट पेंसिल से करेंगे सारे और साथ में नीट एंड क्लीन करेंगे, फॉर्मेट बना के करेंगे. और होमवर्क सब बच्चों को अपना सबमिट कराना है मेरी ईमेल आईडी पे. ठीक है. Now subscribe this channel if you like my video. That it this lecture. Goodbye. Thank you.